students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है Python Basics. Things to learn: what is Python, downloading Python, installing Python, Python interface, variables in Python, commands in Python, input and output function. Robo children, have you ever thought about the versatility of a computer? How efficiency it carries out all tasks with accuracy and is used in almost every field. Well, a computer is a device to which you can give instructions to carry out the sequence of arithmetic or logical operations automatically. तो कंप्यूटर जो है वो इतना वर्सटाइल है कि वो हर जगह यूज़ किया जाता है. आपने देखा होगा, आप कंप्यूटर घर पे तो यूज़ करते हैं, स्कूल में भी आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा होगा, बैंक में देखा होगा, इवन कंप्यूटर से बड़ी बड़ी गाड़ियों के मैप्स बनाए जाते हैं, उनके डिज़ाइन बनाए जाते हैं. ठीक है आदि. येस रोबो, दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स. तो कंप्यूटर जो है ये कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जिन्हें प्रोग्राम कहा जाता है. Robo computer programs are instructions to a computer which tell a computer to perform the task necessary to process the data into information. The process of writing instructions program is called programming. The people who write the programs are called programmers. तो आपके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे कोई टास्क को परफॉर्म करना है. ठीक है, जो ये आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोग्राम्स कहा जाता है और इनको लिखने वाले को प्रोग्रामर्स कहा जाता है. तो इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स दैट आर यूज्ड टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम. अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड अ कंप्यूटर. There are some specific computer languages which are used to write programs. Some of the popular examples of programming language are Python, C, C++, Pascal, Java, PHP, etc. Let us learn about Python programming language, which is one of the most powerful high-level programming languages. तो आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं ये आपके सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं और कोड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए. कंप्यूटर लैंग्वेज एक आपका मीडियम होता है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो. तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज़ किया जाता है किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए. What is Python? Python is a high-level programming language that Guido van Rossum created in late 1980s. It is known for its simplicity and readability, making it an ideal language for beginners. With its vast functionality and capabilities, Python is commonly used in various fields such as web development, data analysis, artificial intelligence and more. तो पाइथन आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गाइडो वैन रोसम के द्वारा क्रिएट किया गया था 1980s में. ठीक है, ये जाना जाता है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और रीडेबिलिटी के लिए. मतलब ये इतना इजी है कि जो बिगिनर्स होते हैं जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे होते हैं वो इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं. फीचर्स ऑफ पाइथन: programs written in Python are easy to understand and relatively simple. Python is a high-level language. It is a free and open source language. You do not need to buy any license to use it. It can be freely downloaded from the internet. Python is a case-sensitive programming language. For example, name and name are not treated as same in Python. Python can run on various operating systems and hardware platforms, thus it is a platform independent and portable. Python has a rich library of predefined functions, thus providing vast coverage of applications that can be developed on Python. Python is also helpful in web development. Many popular web services and applications are built using Python. Python uses indentation for defining a block of code or a loop structure. Python is an interpreted programming language, means Python code is executed line by line. Python features include its limitations also, like it's not memory efficient. तो यहाँ पे Python के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. एक तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है.
हाई लेवल प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, ये फ्री है और ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब अगर आप इसमें कैपिटल में नेम लिख रहे हैं और स्मॉल लेटर्स में नेम लिख रहे हैं तो ये सेम नहीं ट्रीट किया जाता पाइथन में। पाइथन में आपके वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन किया जा सकता है और वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको चलाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है। पाइथन काफ़ी रिच लाइब्रेरी को डिफाइन करती है, जिसमें आपके वेरियस प्री डिफाइंड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। पाइथन काफ़ी हेल्पफुल होती है वेब डेवलपमेंट के लिए। Downloading Python interpreters is free and downloads are available for all major platforms Windows, Mac OS and Linux in the form of source and binary. Follow the given steps to download and install the Python software. तो पाइथन जो है फ्री है और इजीली इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे आप पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो। ओपन अ ब्राउज़र एंड गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट http://www.python.org/download/ and press enter key. The following page appears in your browser. Click on download Python. The setup of Python starts to download on your computer in downloads folder. तो बहुत easy है इसे डाउनलोड करना। Installing Python. After downloading, next step is to install it in your computer. Step 1. Open downloads folder and double click on Python program icon. Installation process starts and Python setup dialog box appears. Step 2. Click on install now. When the installation process finishes, setup was successful appear. अब डाउनलोड आपने कर लिया, अब इसको आपको इंस्टॉल भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ओपन फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर आप पाइथन प्रोग्राम आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक नाउ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलेशन विंडो है वो ओपन हो जाएगी और जो आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होते हुए आपको दिखाएगी। स्टेप 3. क्लिक ऑन क्लोज बटन। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। क्रिटिकल थिंकिंग इन विच ईयर वॉज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड। तो आपको बताना है पाइथन लैंग्वेज किस ईयर में डेवलप्ड हुई थी। पाइथन इंटरफेस। पाइथन प्रोवाइड्स 2 different modes for writing programs. The 2 different modes that programmers can use to write Python programs are interactive mode, script mode. The programmers can use these 2 different modes according to their own coding needs and requirements. तो पाइथन इंटरफेस जो है ये आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स को क्या करते हो, राइट करते हो। इसमें आपके 2 different मोड्स नज़र आते हैं, एक होता है आपका इंटरैक्टिव मोड, दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। Interactive mode. In the interactive mode, you can type the command in the window and the Python interpreter will execute the command and give you the result or error immediately. To work in the interactive mode, follow the steps given below. Step 1. Click on start button. Step 2. Scroll down to Python 3.12. Step 3. Click on idle Python 3.12. The idle screen opens. Idle stands for Integrated Development Environment. It is a text editor which helps you to write and execute Python programs line by line. There are 2 main components of Python idle window. Menu bar. The menu bar of Python idle window is similar to the menu bar of other programs. It has various menus such as file, edit, shell, debug, option, window and help. तो आपका जो इंटरैक्टिव मोड है इसमें आप अपनी कमांड्स को टाइप कर सकते हो विंडो में, ठीक है। और पाइथन इंटरप्रीटर जो है ये आपकी कमांड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो उसका एरर भी आपको दिख जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए पाइथन 3.12 पे आपको जाना है, आपको क्लिक करना है आइडल पे। आपके सामने आइडल स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। आइडल के यहाँ पे आपको फुल फॉर्म दी गई है, ठीक है। ये एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो कि आपको आपके प्रोग्राम्स को राइट और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है लाइन बाय लाइन। यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं पाइथन आइडल विंडो में। पहला होता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार आपके दूसरे जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उन्हीं की तरह सेम ही होता है और इसमें आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं, जैसे कि फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शन एक्सेट्रा। Next is prompt. You will see a blinking cursor after the symbol less than in the window. This is known as the prompt. The prompt
allows the user to enter commands directly into Python and get an output instantly by pressing the enter key. Let us enter statement welcome to Python at the prompt and press enter key. प्रॉम्प्ट जो है ये आपका ब्लिंकिंग कर्सर होता है, ठीक है, और ये इस तरीके के सिंबल के साथ आपको नज़र आ रहा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रॉम्प्ट कहा जाता है. प्रॉम्प्ट आपके जितनी भी कमांड्स हैं उनको एंटर करने में हेल्प करता है डायरेक्टली इनटू पाइथन, और आपको उसका आउटपुट भी इंस्टेंटली मिल जाता है जब भी आप एंटर की प्रेस करते हैं. यू शुड नो अ स्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्राम दैट यू टाइप इन पाइथन. तो आपको स्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्राम होती है जो कि आप पाइथन में टाइप करते हैं. यू कैन सी दैट वेलकम टू पाइथन इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. पाइथन एक्सेप्ट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड ट्रिपल quotes to denote string. Make sure that the same type of quotes start and ends each string. The triple quotes are used to span the string across multiple lines. You can type some other commands as shown in the figure below. You can see that you get the result of each command when you press enter. तो यहाँ पे जो पाइथन है ये सिंगल, डबल और ट्रिपल कोड्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ताकि आप किसी भी स्ट्रिंग को डिनोट कर सको. ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रिपल कोड्स को यूज़ करते हो स्पैन को वहाँ पे डालने के लिए अक्रॉस मल्टीपल लाइंस. Now quick tips. In idle you can press Alt plus P to repeat the previous command. अगर आपको previous command को repeat करना है तो आप Alt plus P प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे. You should know Python language is case sensitive, which means that n and n are different. So print will give an error while print will not. तो आपको पता ही है कि पाइथन लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव है. ठीक है, तो इसमें आपको हर एक जो लेटर होता है वो बहुत ध्यान से प्रेस करना होता है. Working in script mode, you cannot save the commands in the interactive mode and you can execute only one command at a time. So if you want to reuse some commands or execute a group of commands, you need to save it in the form of a file. You can do this in the script mode. You can save a file in Python with a .py extension. To write a program, follow the given steps. Step 1, start Python idle. Step 2, click on the file menu, new. Step 3, in the window that opens, type the commands you want. See the figure below. Step 4, click on file save and save the file with the .py extension. After you have written and saved a script, as the program is called, you have to run the program. Click on run module. You can see the result of the complete program in the window. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे स्क्रिप्ट मोड पे काम करते हो. ठीक है, आप किसी भी कमांड को सेव नहीं कर सकते इन द इंटरैक्टिव मोड, जिसको भी आप क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. ठीक है, आपको एक ही कमांड को एक टाइम पे क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा. अगर आप पुरानी कोई कमांड को रीयूज़ करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइल की फॉर्म में सेव करना होगा. आप इसको स्क्रिप्ट मोड पे कर सकते हैं. कैसे, यहाँ पे कुछ स्टेप हमें दिए गए हैं. आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइथन आइडल को, उसके बाद आप क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, देन आप जाएंगे न्यू पे. आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी. यहाँ पे आपको कमांड को टाइप करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको विंडो में दिखाया गया है. उसके बाद आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देन आप सेव पे जाएंगे और फिर आप उस फाइल को .py एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे. देन आप देखेंगे कि आपकी जो भी आपने पहले राइट किया था उसको सेव किया था, तो वो आपका प्रोग्राम में आपको रन करना शुरू हो जाएगा. उसके बाद आप क्लिक करेंगे रन एंड रन मॉड्यूल पे, तो आप आपके रिजल्ट को आपकी प्रोग्राम विंडो में इजीली देख पाएंगे. You should know interactive mode is very useful for testing a code as it displays the errors one by one. तो इंटरेक्टिव मोड जो होता है काफ़ी यूज़फुल होता है आपके कोड्स को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपके डिस्प्लेस को एक एक करके दिखाता है. क्विक टिप्स, प्रेस F5 की टू रन अ पाइथन प्रोग्राम. तो आप यहाँ पे फंक्शनल की जो होती है आपकी F5, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए. सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, टाइप द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वन बाय वन एंड नेक्स्ट टू पाइथन प्रॉम्प्ट एंड नोट डाउन द आउटपुट इन द टेबल गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको इन एक्सप्रेशंस को फॉलो करना है वन बाय वन और फिर यहाँ पे आपको उसके प्रोग्राम लिखने हैं. Variables in Python. Python variable is containers that store values. A Python variable is a name given to a memory location. It is the basic unit of storage in a program. तो variables जो होते हैं ये आपके किसी भी वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ठीक है, और ये आपकी बेसिक यूनिट मानी जाती है किसी भी प्रोग्राम के स्टोरेज की.
We do not need to declare variables before using them or declare their type. A variable is created the moment we first assign a value to it. Values are assigned to variables using the assignment operator equal to. For example, the statement x equal to 25 assigns the value 25 to the variable x. तो आपको किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो उसी टाइम जब आप किसी वैल्यू को असाइन करते हैं। Rules for naming a variable. Variable names should be descriptive. They should be start with a lowercase letter. You can separate the words with underscore followed by more letters, underscores or digit 0 to 9. Python does not allow punctuation. Characters such as @ $, and percentage spaces are not allowed in a variable name. Variable names are case sensitive. Example, age and age are different variable names. Example of some valid variables names are class, emp underscore code, total salary, min value, bal underscore fee, age 1980A, 198S. If a variable is being used without assigning a value, i.e. if the variable is not defined, it gives an error. तो यहाँ पे हमें कुछ रूल्स दिए गए हैं कि कैसे आप किसी वेरिएबल को नेम कर सकते हो। वेरिएबल नेम जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये लोअर केस से ही स्टार्ट होना चाहिए। आप इसमें वर्ड्स को सेपरेट कर सकते हो, अंडरस्कोर जो आपका सिंबल होता है इसको, ठीक है। पाइथन जो होता है ये आपके पंक्चुएशन कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करता और आपके स्पेसेस को भी ये अलाउ नहीं करता वेरिएबल नेम्स के बीच में। आपके जो वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो एज है, मतलब आप कैपिटल लेटर के साथ ए जो लिखते हो और जब स्मॉल लेटर के साथ ए लिखते हो, ये दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। Now data types. In Python, a data type determines the type of data that can be stored in a variable or memory. Python has various standards that types that are used to define the operations possible on them and the storage method for each of them. For example, a student's roll number is stored as a numeric value and his or her address is stored as alphanumeric characters. Python has various inbuilt data types, but we are covering 3 basic data types. A int, integer, represents integral numbers and numbers without any fractional part. Examples of integral numbers are 3, 84, 0, -1, 3, 4, 3, 4. B float, it represents floating point values and numbers with fractional part. The fractional part of a floating point number may be 0 also. Examples of floating point numbers are 3.14 -48.6, 187.78. str string, a string data type represent strings of characters enclosed within quotation mark. Or examples of strings are hello, my name, 218, peace, etc. तो यहाँ पे हम डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि पाइथन किस किस तरह के डेटा टाइप्स को क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। पहला इसमें इंटीजर, ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल नंबर्स को, ठीक है, जिसमें आपके फ्रैक्शनल पार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरा आता है आपका फ्लोट, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को और इसमें आपके फ्रैक्शनल पार्ट जो होते हैं ये आपके फ्लोटिंग पॉइंट्स में नंबर्स को दर्शाता है जो कि 0 भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है ये आपके स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि कोटेशन मार्क्स के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं और बिना कोटेशन मार्क्स के आप इनको लिख नहीं सकते। कमेंट इन पाइथन, non-executable statements in Python are known as comments. These statements are added in the program as helping lines for better understanding of the code, thus enhancing the readability. तो आपके जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन में ये कमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपके प्रोग्राम में ऐड की जाती हैं ताकि आपको उस कोड के बारे में अच्छे से एक नॉलेज मिल सके और आप उसको इजीली समझ सको। Single line comment, single line comments start with a symbol, hash pronounced as hash, line starting with hash is treated as a comment. तो आपके जो सिंगल लाइन कमेंट है ये हैश के साथ, हैश सिंबल के साथ स्टार्ट होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग टू सेव अ पाइथन फाइल, विच एक्सटेंशन डू वी यूज़। तो आपको बताना है कि पाइथन फाइल को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। Now multi-line comment. Python does not provide the option for multi-line comments. However, there are different ways through which we can write multi-line comments.
हालांकि पाइथन जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स को अलाउ नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन प्रोवाइड नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से मल्टीपल लाइन कमेंट्स को राइट कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट्स यूजिंग मल्टीपल हैशटैग्स। We can multiple hashtags to write multi-line comments in Python. Each and every line will be considered as a single line comment. Python multi-line comments can also be enclosed in a delimiter. Again, there should be no white space between delimiters. They are useful when the comment text does not fit into one line, therefore needs to span across lines. This type of string literal gets ignored as it is not assigned to any variable. We can access these strings using underscore doc underscore. Multi-line comments are used to comment on more than one line. The first line is a single line comment. The second line and third line can be commented on using triple quotes. This prevents the execution of the above code. Finally, it prints मैथमेटिक्स इन द आउटपुट। तो नेक्स्ट आपके आ जाते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। वैसे तो हम जान चुके हैं कि पाइथन अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी आप कैसे मल्टी लाइन कमेंट्स को लिख सकते हो। मल्टी लाइन आपके जो कमेंट्स होते हैं ये आपके मल्टीपल हैशटैग्स के साथ लिखे जाते हैं। पाइथन मल्टी लाइन कमेंट्स जो होते हैं ये आपके डेलिमीटर जो आपके हैशटैग्स होते हैं या फिर आपके जो कोटेशन मार्क्स होते हैं इनके बीच में ये लिखे हुए होते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आपका कमेंट टेक्स्ट जो होता है ये आपके एक लाइन के अंदर फिट नहीं होता, इसलिए आप इनको यूज़ करते हो। मल्टी लाइन कमेंट्स जो होते हैं ये आपके कमेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन जो होती है आपकी सिंगल लाइन मानी जाती है। दूसरी लाइन या तीसरी लाइन को आप स्टार्ट करने के लिए आप ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हो। Input and output function. Input function. In Python, the input function enables you to accept data from the user. The function is designed so that the input provided by the user is converted into a string. If any user wants to take input as int or float, we just need to typecast it. Syntax variable underscore name is equal to input bracket inverted comma string. Here variables underscore name means any name identifier where input function assigns the string value into it. तो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। पाइथन में आपके जो इनपुट फंक्शंस होते हैं ये आपके डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फ्रॉम द यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फंक्शन है उसको डिज़ाइन किया जाता है सो दैट आपके जो इनपुट है उसको प्रोवाइड किया जाए ईजिली बाय द यूज़र, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो सके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स आपको बताया गया है, रूल आपको बताया गया है कि कैसे आप यहाँ पे इनपुट डालते हैं। टेकिंग द नेम एंड एज ऑफ द यूजर एज इनपुट, बाय डिफॉल्ट इनपुट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, सो द नेम एंड एज विल बी स्टोर्ड एज स्ट्रिंग। अब बाय डिफॉल्ट जो आपका इनपुट होता है वो स्ट्रिंग के रूप में आपको वापस मिलता है, रिटर्न होता है, ठीक है। Taking two integers from user and adding them. In this example, we will be looking at how to take integers input from users. To take integers input, we will be using int along with Python input. In the above program, when you run the source code, the sum of 45 and 87 shows 132 as the given value, converts into integer using int function. So plus operator performs the addition between entered values. This is called typecasting. Note, you can also convert a string into decimal value using float parenthesis function. तो यहाँ पे आपको दो इंटीजर्स को दिखाया गया है कि कैसे आप लेते हो यूज़र से और फिर उसको क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है। इस एग्जांपल में हम समझेंगे कि आप कैसे इंटीजर्स को लेते हो इनपुट फ्रॉम द यूज़र, फिर आप इंटीजर्स को लेने के लिए आप इस तरह का पैरेंथेसिस जो है उसको अप्लाई करते हो। अब प्रोग्राम में जब आप किसी सोर्स कोड को रन करते हो तो यहाँ पे आपके सम ऑफ 45 एंड 87 शोज करते हैं 132 एज द रिजल्ट। इसी को टाइपकास्टिंग कहते हैं। नाउ प्रिंट फंक्शन। द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन और अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। द मैसेज कैन बी अ स्ट्रिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग बिफोर इट रिटर्न टू द स्क्रीन। सिंटैक्स प्रिंट bracket string slash variable slash constant. In the given example, we have created three variables, integer, string and float, and we are printing all the variables with print bracket function in Python.
You can also pass more than one argument to the print function in such a case that arguments are separated by commas as shown in figure given on next page. तो अब यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं. प्रिंट फंक्शन जो होता है ये आपके स्पेसिफाइड मैसेज को आपके स्क्रीन पे क्या करता है, प्रिंट करता है, डिस्प्ले करता है, या फिर अदर स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस पे ये आपको दर्शाता है. जो मैसेज होता है ये आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. बाद में इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्ट्रिंग ताकि आपके स्क्रीन पे इसे लिखा जा सके. सिंटेक्स यहाँ पे आपका बताया गया है कि प्रिंट के साथ आप ऐसे स्ट्रिंग वेरिएबल कांस्टेंट लगाते हो, और यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया गया है इसे और अच्छे से समझने के लिए. Tricky terms. Python, a high-level programming language. Idle integrated development environment is a text editor which helps you to write and execute Python programs line by line. Variable containers that store values. Data type determines the type of data that can be stored in a variable or memory. Comments. Non-executable statements in Python. Input. Function accepts the data from the user. Print. Function prints the specified message on the screen. Escape characters. Special characters represented by a black slash followed by the characters. तो इस चैप्टर में हमने पाइथन जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके बारे में जाना, और उसके वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.